Actually, I am not academician. I am from the came from directly from that field. I am working for adolescent girls. You are making her an academician. Slowly she will become I am working for adolescent girls from slums of Pune city. I am working from last 15 years in the slum. And every year when the Urus come, in Marathi we call it as the Urus. And we can say fair or Jatra. All these families, slum people, move to the or travel back to their native places. So they bunk their schools, colleges. Even they don't go for their daily wages also. So every time I used to think, what is this Jatra? Why they are going to their native places? Some of them are having pardi at their houses. So pardi is for the Tulza Bhavani. So those women who are carrying that pardi at their house, they have to visit 5 different houses every Tuesday and bring Shridha, that is some rice, some oil, then salt, and also 5 different types of Shridha she has to collect and what we can say, offer it to the Tulza Bhavani in their house. So these all rituals these people all are following, and I was thinking, what is this? What is the strength behind? What इसके पीछे क्या है कि इसको वापस गांव लेके जाता है, जत्रा आती है, फेयर आता है तो ये वापस चले जाते हैं, तो what is that behind? So decided to study the different Grama Devatas or Kula Devatas these people are following or worshipping from generation to generation. So my objective is to study and document the stories, because each and every Grama Devata, each and every Kula Devata is having her own different stories depending upon the place, the community, and their socio-economical condition. So to study how all these deities relate with the Shakta tradition and to study the significance of these stories on a modern feminine view. This was what I had decided while starting the study and all. Scope was to, actually Pune district is a big district. In each tehsil there are number of Grama Devas, or in each village there are number of Grama Devas, or we can say each Vasti is having their own Devi. So decided to go only for 10 Grama Devatas and the pandemic condition. So every village was closed. Each and every time I had to go for the first do the phone call, take permission from police, take permission from the Sarpanch, and then visit the temple. Most of the time the temple was closed. So 2-3 visits, more than 4 visits I have visited to all these 10 temples. So mostly some interviews I need to conduct on the phone call पे कुछ लोगों का interview लिया, और some of the time I have to visit by taking prior appointment of the priest and the sarpanch from that community or from that village. Before starting to these visits and all, I have designed a Google form to know more about their Devi. कि क्या है आपकी देवी, क्या है, आप उसको वर्शिप कैसे करते हैं, कितने सालों से करते हैं, कितनी पीढ़ियों से करते हैं, ये पूछने के लिए मैंने कि एक फॉर्म डिज़ाइन किया और आई हैव सर्कुलेटेड इन सोशल मीडिया विद द हेल्प ऑफ माय फील्ड वर्कर्स जो मेरे साथ काम करती है झुग्गी झोपड़ियों में, उनके साथ मैंने ज्वाइन किया था. तो मोर देन 57 एंट्रीज इन द पैंडेमिक पीरियड आई गॉट, out of which 37 entries were from Pune city itself, and rest of them from out of all over Maharashtra. Number of books are available. So I have tried to read all these things. As I said earlier, I am not academician. I was trying to connect each and everything with that books. Whatever I am looking, whatever I am just observing from these communities, I was trying to. The big book or the big volume of encyclopedia I came across, that is the Adi Shaktiche Vishwarup by P.K. Prabhu Desai. It's a big volume, and in that volume he has informed about all
the deities, female deities from all over the world. He has tried to write all these You things. can skip all this. Yeah, yeah. Do your what work Okay. you do. These books Yeah. are all. Yeah, they are all available on net and all. Yeah. So- So you just. So I will just compare these. I have visited 10 different deities. So this is Kendrai Mata and Kanur Mesai. Both are the forms of Renuka, Ma Renuka. And we all know the story of Renuka, that her head was blown off, and it is believed that the head was replaced by the head of Matangi. Some community believes that the head is replaced by Matangi. So this is the Renuka. It is a Kendrai Mata Mandir in Kendur Pabal. It is 60 kilometers away from Pune city. So I visited there. The story is that the Mata came in the dream of us. She gave the drishtant to the priest, and he has established the temple and all. But what we can say in Marathi, we say it as a Tandala or Mukhauta, face of that Devi. So it is similar to the Renuka Mata Mandir in Mahur. It is the same. It is said that it is the same. The thing is that whatever activities they are conducting, and जो भी उन्होंने तय किया कि हमारे गांव में जो भी कुछ होगा, जो भी अच्छा कोई भी चीज़ वो डिसाइड करते हैं, before that they used to come to the temple to take the permission of that Kendrai Mata. So the center of the village is the Kendrai, and hence that name is Kendrai Mata. The another one is very interesting story. It is a Kanur Mesai. It is the same form of another form of Renuka Mata. And interestingly the story is that they were 7 sisters, 7 बहनें थी. नासिक के बाजू में जो कोकण एरिया है, कोकण एरिया में ये सब लोग थे. बहनों में झगड़ा हो गया, तो झगड़े में सब ने अपनी अपनी जगह तो ले ली, मैं यहाँ बैठूंगी, मैं यहाँ रहूँगी, ऐसे हो गया. लेकिन इसके लिए मेसाई के लिए कोई जगह नहीं थी. तो उसने बोला कि मैं कहाँ जाऊँगी. तो मराठी में ऐसे बोलते जा मसनत, मीन्स गो टू क्रीमेटरी. सो सी गॉट एंग्री एंड उसने छोड़ दिया कि मैं इनके साथ नहीं रहूँगी, मैं अभी जाती हूँ, जहाँ कहीं भी शमशान होगा मैं वहाँ जाऊँगी. सो बाय सर्चिंग सी केम टू द राजगुरु नगर खेड़, दैट इज इट इज़ खेड़ तहसील इन Pune district. So she came to Kanur. In the Kanur, we know that crematorium is already outside the village. So there were jungle, forest and all. तो उसमें वो आई, वो लमान या बंजारा कम्युनिटी के साथ आई, क्योंकि बंजारा कम्युनिटी इज अ ट्राइबल कम्युनिटी एंड दे आर मूविंग फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेसेस फॉर दैट ट्रेड एंड ऑल. तो उनके साथ वो वहाँ पर आ गई. रात को वहाँ रुके सब लोग, और सुबह जब लोग वापस जाने लगे तो सी स्टॉप देयर एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल वेंट. वहाँ पर एक माड़ी बाबा करके है, उनके क्या बोलते हैं उनको, रात में सुबह के जिसमें उनके ड्रीम में सब उनके इसमें उन्होंने दृष्टांत दिया और बोला कि मैं यहाँ आई हूँ, लेकिन मैं शमशान में हूँ, मुझे शमशान से बाहर नहीं ले जाना है, वहाँ पर मेरा मंदिर करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी. आप कहोगे आपके पूरे गाँव के लिए हर जगह हर तरह का काम मैं करूँगी, लेकिन मुझे मंदिर यहाँ शमशान में चाहिए. तो माली बाबा ने वो पूरा वो आइडल वहाँ पे इंस्टॉल किया. यहाँ पर 2 आइडल्स है. एक जो आगे दिख रहा है ना, वो जो सिंदूर जैसा है, ये जो ओरिजिनल है, और उसके पीछे जो है वो नया बनाया हुआ है, वो मार्बल का बनाया हुआ है. जब भी वो पालकी निकालते हैं तो पूरा नया वाला लेके जाते हैं, क्योंकि अभी नया जनरेशन है, उनको चाहिए हमारी माँ भी एकदम अच्छी दिखनी चाहिए, वो ऐसे नहीं लेके जा सकते. तो दे हैव चेंज इट. वन मोर थिंग इज़ दैट अबाउट दिस टेम्पल कि यहाँ पर 1.5 साल की उम्र की बच्ची या फिर विडो यही अंदर जा सकती है गर्भगृह में. और उससे पहले जो आज वहाँ पर जो भक्तिन है या फिर जोगतिन है, वो जो काम करती है वहाँ पर, वो विडो है. उससे पहले बंजारा कम्युनिटी की जोगतिन थी. तो उसका देहांत होने के बाद गांव ने डिसाइड किया कि जोगतिन कंसेप्ट तो नहीं है, क्योंकि जोगतिन का मतलब सर ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि 12 साल की लड़की का भगवान के साथ ब्याह किया जाता है और उसको बोलता है कि ये भगवान को दे दिए, और उसने क्या करना है, उसने ये पूरा मंदिर का पूरा काम उसने करना है. ऐसी प्रथा थी. अभी वो बहुत कम हो गया, अभी हार्डली कई जगहों पर जोगतिन मिलती है. तो जब भी उसका देहांत हुआ तो गांव ने डिसाइड किया कि या तो जोगतिन जा सकती है, या तो 1.5 साल की बच्ची जा सकती है, या फिर विडो भगवान के मंदिर में आ जा सकती है. तो हमारी देवी की पूजा भी गांव की जो नीडी विडो थी उनको उन्होंने दिया. उन्होंने कहा कि ये आपने संभालना है.
तो मैंने जब We कहा want all of you to focus on this, you know, because all those stories about the way widows are treated and how disrespected they are, I found this bit of a finding very, very interesting, very, very significant, and I really asked her to showcase this, because then it is the oldest widow in the village who is asked to run the temple. So it is really something worth thinking about. And in the crematorium. yes, yes, it is in a crematorium. These are all sources of ritual impurity, so to speak, if you want to talk of the way you do models, but the reality is different. Exactly. मैंने बोला था कि मुझे अंदर जाना है, फ़ोटो लेना है, आप अंदर नहीं आ सकती। तो उनका एक बच्चा था, बच्चे को बोला मुझे फ़ोटो चाहिए, क्योंकि मैं कैसे बता पाऊँगी ना, मैं यहाँ पर आई थी, मैंने काम किया है, आपके साथ बात हुई। तो बच्चा यहाँ पर मंदिर है, मंदिर के बाहर 2 वैसे बैरक्स लगाए हुए हैं, वहाँ से एकदम आगे वो खिड़की है, वहाँ से उसने फ़ोटो खींचा। मैंने आप क्यों नहीं गए, आपकी तो दादी है। मुझे अलाउड नहीं है, कोई भी मेल गर्भगृह में नहीं जा सकता, कोई भी लड़की 1.5 साल से ऊपर जो है वो नहीं जा सकती, कोई भी सवाष्ण अंदर नहीं जा सकती। तो ओनली दैट पर्सन दैट What if someone breached that rule? तो उसका repercussions? वो लोगों को पता नहीं है। मैं वही बोल रही कि इनके जो स्टोरीज़ है उसका डॉक्यूमेंटेशन होने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग भूल जाते हैं कि क्या बात थी इसके पीछे। क्योंकि ये जो रिचुअल है, कि ये जो प्रथा है कि कोई भी बोलते कि मैरिड वुमन नहीं जा पाएगी, कोई भी बच्ची अंदर नहीं जाएगी, कोई भी मेल उसमें गर्भगृह में नहीं जाएगा। इसके पीछे का कारण क्या है ये अभी बता नहीं पाते, क्योंकि जोगतिन थी तो वो बता सकती थी। जोगतिन का डेथ हो गया, उसके डेथ के बाद गांव ने तय किया कि यहाँ पर सिर्फ विडो जाएगी, क्योंकि वो उसका रूल है, उसको फॉलो करेंगे। लेकिन लोग ये भूलते हैं, लोगों के पास इसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। जहाँ जहाँ मैं गई वहाँ के लोगों ने कहा है कि अगर आप कुछ लिखना चाहती हो तो हमारी ये स्टोरी आप लिख के हमें दे दो, हमें ये स्टोरी हमारी इंटरनेट पे चाहिए, क्योंकि लोग हमारे नेक्स्ट जनरेशन में ये पता ही नहीं चलेगा कि हमारी माता कैसी थी, इसका रिचुअल्स क्या था, इसके पहले वाली स्टोरी क्या थी। अभी जैसे जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे इसमें बोलते हैं कि दंत कथा है, मेरी दादी से सुना, फिर माँ से सुना, और मुझसे मेरे बच्चे तक जाएगा तो उसमें से पूरा डाइल्यूट होके जाएगा, या फिर वो समय के हिसाब से जाएगा। इसलिए वो लोगों का भी कहना है कि इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड, और हर जगह अलग अलग स्टोरी है। नेक्स्ट स्लाइड। ये है गड़दा देवी और वड़दा जी। वड़द मीन्स बनियान ट्री, वी वर्शिप वड, एंड इट इज़ सेड दैट कि वडज नाम का एक विलेज था, गांव था, वो नेशनल कैलेमिटी में उसको डिस्ट्रॉय हो गया था। एक शेफर्ड को जब वो वहाँ पर उसके गाय चराने के लिए गया था, तो शेफर्ड को पता चला कि अरे यहाँ पर कुछ है, तो उसने देखा तो भगवान की मूर्ति, उसका आँखें वगैरह थी, तो उसने कहा कि नहीं ये भगवान है। उसने गांव के लोगों को बोला, तो गांव में जो बूढ़े बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि अरे ये तो हमारी माता है। जो पूरा एक शहर था वहाँ पर, वो पूरा नेचुरल कैलेमिटी में डिस्ट्रॉय हो गया था। अभी वहाँ पर वो एरिया में सिर्फ एक वड़ का पेड़ है, एक बनियान ट्री है। ऐसे कहते हैं कि वहाँ पर पूरे जगह पे पूरे बनियान ट्री थे, मतलब जो जंगल था वो पूरा बनियान ट्री का था। अभी सिर्फ एक वड़ बाकी है और उसमें ये मंदिर है। यहाँ पर भी वही सेम किया है, ओरिजिनल तांदड़ा नीचे है और पीछे वो नई वाली मार्बल वाली मूर्ति बना के रखी है। सेकंड इज़ गड़दा देवी। तो बीच में जो देवी की मूर्ति है ये नई है, 1974 में बनाई हुई है, और बाजू में 2 तांदड़ा बोलते हैं, मुखौटा बोलते हैं, वो है। एक कमला देवी और एक गड़दा देवी का है। इसकी स्टोरी भी ऐसे ही है। बोलाजी बाबा करके एक भक्त थे, वो ट्रेडिंग करते थे, मतलब उनके खेत में जो भी आता था वो पूरा उठा के, चावल आते थे, चावल लेके खेड़ में आते थे, वाड़ा से लेकर खेड़ तक 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वहाँ पर आते थे। वहाँ आकर वो बेचेंगे, वहाँ से मूंग लेकर वापस अपने गांव जाते थे, वहाँ वो मूंग बेचते थे। ऐसा उनका वो ट्रेडिंग था। बुढ़ापा होने के कारण कि उसको लगा कि अगर मैं अभी वापस वाड़ा से खेड़ जाता हूँ तो शायद वापस नहीं आ पाऊँगा, मेरी माँ तो यहाँ पर है। तो माता जी ने उसको दृष्टांत दिया कि आप जहाँ तक जाओगे पीछे नहीं देखना, मैं आपके साथ आऊँगी। आपने डाउट किया, पीछे देखा, मैं रुक जाऊँगी। तो ये चलते चलते वो हिल स्टेशन पर आ गया। पूरा हिली एरिया है, एकदम टॉप मोस्ट पोजीशन है वहाँ पर, और बाजू में 8 अलग अलग छोटी छोटी बस्तियाँ हैं। तो ये हिल स्टेशन है, वहाँ पर जाते हैं। वहाँ उसने सोचा कि रात हो गई, रुकते हैं। तो उसको लगा कि माँ साथ में नहीं है, पीछे देखा, वहाँ पर अंदर एक केव है। ये केव में पूरा मंदिर बनाया हुआ है। रुक गया,
माँ ने बोला कि आप रुक गए, आपने पीछे देखा है, तो अभी आपको काम यही करना है कि मुझे यही छोड़ देना है, मैं यहाँ रहूँगी, मैं आपके साथ आगे नहीं आऊँगी। सो यस आई विल। सो द प्लेस इज एट दैट टाइम ऑल्सो कि ये प्लेस कहाँ किसके लिए, तो वो देखने के लिए कि वहाँ से कोई किसी का हमला होता है क्या, ये सब देखने के लिए ये प्लेस का यूज़ किया गया था। और ज़्यादातर उस समय मुग़ल लोगों का अटैक होते थे, तो वहाँ पर जो बोलाजी बाबा येस बाबा थे, उनको देवी दृष्टांत देती थी कि किस दिशा से मुग़ल आने वाले हैं, एंड शी वॉज प्रोटेक्टिंग। यस, नेक्स्ट प्लीज। Conclude with the link with the urban poor who are practicing ऐसे वो जाते हैं वापस वर्शिप करने। क्या? तो आप लोग को ना कि वो सभी अपने गाँव देवी जैन सब पूजा करते हैं, उन्हें में आपने। हाँ है, एक जगह है वहाँ पर कौठेयमाई और महाकाली माता, ये भी ऐसे ही स्टोरी है। कौठेयमाई की स्टोरी रामायण से लिंक है, और महाकाली माता का है जो सप्तमातृका का जो है वो एक वैदू ट्राइब है, जो लोग मेडिसिन लेके गांव-गांव भी घूमते थे, उनका है। तो स्थिति ये है कि हर जगह पर ये सब अपने अपने गांव में है। जो लोग पुणे शहर में रहते हैं वो हर साल उठकर अपने गांव जाते हैं, अगर नहीं जाते तो क्या होता है, तो कई लोगों ने ऐसे बोला कि अरे हम लोग नहीं जाते हैं तो हमारे घर में कुछ बुरा हो जाता है, हम वो फॉलो नहीं करते तो कुछ गड़बड़ होती है। एक जगह है ओसाडजाई करके, नेक्स्ट इसमें होगा। ओसाडजाई करके टेम्पल है, वहाँ का गांव का नाम है ओसाडे, और वहाँ पर किसी को किसने बोला है कि हम बोलते कि नवस बोललं किंवा नवस फेडायचं है, वो रिपे करना है वो को, तो वो करने के लिए वहाँ पर बाजू में नदी है, रिवर है, रिवर से सब पूरे जब जितने भी बर्तन चाहिए होते किसी में प्रसाद बनाने के लिए, तो प्रसाद के लिए बर्तन आते थे। रात के समय वो बर्तन आते थे, वो बर्तन उठाने के, वो साफ करके उसमें प्रसाद बनाना है, प्रसाद सब गांव को बांटना है। प्रसाद लेने के बाद वापस सब क्लीन करके दूसरे दिन रात को उसमें हम बोलते हैं कि माँ की ओटी भरनी है या फिर ऑफरिंग देना है, तो साड़ी है, बैंगल्स है, ये सब देकर वो पूरे बर्तन में वापस वहाँ पर रखना है और रात को 12 बजे नदी में छोड़ देना। ऐसा वो कई सालों से करते थे, लेकिन एक साल वहाँ का एक बर्तन गायब हो गया, किसी ने चुरा लिया, उसके बाद वहाँ से अभी बर्तन वापस नहीं आते। बट दिस पीपल बिलीव दैट कि जो भी लोग कोविड पीरियड में ओसाडे में रुके थे उनको कोविड का कुछ भी इन्फेक्शन नहीं हुआ, माँ हमारा प्रोटेक्शन करती है। सो दे यूज टू फॉलो, कुछ भी हो जाए हम हमारे गाँव वापस जाते हैं। कंक्लूडिंग के लिए आऊँगी मैं, क्योंकि ये हर स्टोरी में एक अलग अलग ये है और हर एक का हिस्ट्री अलग है, हर एक का साल अलग है। मुझे ऐसे लगता कि जब मैं लड़कियों के साथ काम करती हूँ, हर जगह पर ऐसे होते कि हम बोलते कि हमारी शक्ति है, और मेरे प्रोजेक्ट का नाम भी किशोरी शक्ति है। मैं कहती हूँ कि मैं शक्ति की वर्शिप करती हूँ, लेकिन ये हमारे घरों में शक्ति कहीं नहीं दिखती है। जब मैं इन झुग्गी झोपड़ियों में काम करती हूँ तो लड़की की वैल्यू वहाँ पर शक्ति जैसे नहीं होती। जब एक जगह पर मैं मेरी माँ की पूजा करती हूँ, दूसरी जगह पर मैं मेरी बेटी के लिए उतना केयर नहीं करती हूँ। तो रामदास जी का, समर्थ रामदास जी का मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। हम सबको मालूम है रामदास जी ने महाराष्ट्र में हर जगह पर बलोपासना का एक ट्रेंड किया था। हर जगह गाँव में हनुमान जी के मंदिर खड़े किए थे, क्योंकि लोगों ने स्ट्रेंथ का, शक्ति का ये करना चाहिए, उसके लिए बलोपासना करनी चाहिए, खुद को तैयार करने चाहिए खुद के प्रोटेक्शन के लिए। मैं इस सब पूरे इंडिक एकेडमी के ग्रुप के साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारे हर जगह पर शक्तिपीठ है, हर शक्तिपीठ की अलग अलग स्टोरी है। इन शक्तिपीठों के माध्यम से अगर कोई हम बलोपासना लड़कियों के लिए कर पाए, ताकि ये जो सब हम कहते हैं कि एक जगह पे लोग कहते हैं कि ये डिप्राइव्ड है, नो, सी इज़ नॉट डिप्राइव्ड एट ऑल। तो लड़कियों को थोड़ा पुश करने के लिए, उनकी हर तरह की एम्पावरमेंट के लिए अगर हम लोग सब मिलके कुछ कर पाए, तो मुझे लगता है कि ये जो मुझे आपने सबने जो मुझे अपॉर्चुनिटी दी है उसका ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ ऐसा मुझे लगेगा। वापस एक बार आई विल थैंक ऑल इंडिक एकेडमी ग्रुप। थैंक यू।